Hi, Praveen. Hello, sir. How are you, sir? What? Gary, can you hear me? Yes. Your video is not being shown. You turned off the camera? Yes, I have turned on the camera. Now you're visible now. So Praveen, can you see on the screen? Yes, sir. Okay, this is your copy. Tell me, have you done like some essay class before? Have you joined any class Yes, sir. Not officially, I have not, sir, but I have done classes from Vikas Ranjan, sir. for essay? Seen his Specifically lecture. essay, specifically for Classes essay. regarding essay. Yeah. Yes, sir. Vikas Ranjan, sir. Yes, sir. Vikas Ranjan, sir. अच्छा, Essay. अच्छा. How many lectures did you take? Or I have seen 7 to 8 lectures. It was. अच्छा. Actually, I went through your copy. Okay, not very deeply, but cursory glance I took. So there are certain shortcomings which I find. Is this not that page? Wait a minute. This is it. See, there are few things which I noticed which you need to improve. Okay, you comfortable with Hindi also? Yes, yes. Okay. See, first thing that I came across is like with the introduction is fine in terms of anecdote. Okay. Hmm. Wait a minute. Okay. So as you have mentioned this anecdote, it seems fine. But the thing which I noticed is कि इसमें कहीं कहीं ना इन द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑल्सो आपने क्या है गलतियां की हैं स्पेलिंग एरर्स हैं ओके द फर्स्ट प्रॉब्लम इज यू हैव डन स्पेलिंग एरर्स इन द वेरी फर्स्ट पेज इटसेल्फ और इसका ना यू विल फेस लाइक वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस अगर आप पहले इंट्रोडक्शन में पहले पैराग्राफ में अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो ग्रामर मिस्टेक कर देते हो तो इसका जो है एक जो माइंडसेट होता है एग्जामिनर का ना द इवेलुएटर हु इज चेकिंग योर कॉपी उसमें वो जो है ना वहीं से नेगेटिव माइंडसेट बन जाएगा आपके बारे में और फिर आगे चल के वो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग Yes, sir. हाँ सी देखो अब यहाँ पे देखो सी हियर यहाँ देख रहे हो जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ Proclaimed. इसमें प्रॉब्लम क्या है यू हैव रिटन कैपिटल पी लग रहा है ना आपको कैपिटल पी है ये और ये चीज भी नहीं करनी जैसे लीडरशिप ये अलग कर दिया ना आपने डोंट डू इट Yes. डोंट ब्रेक द वर्ड्स सेकंड थिंग कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर कहाँ यूज होना है प्रॉपर नाउन आपको पता होगा ना प्रॉपर नाउन कॉमन Yes, नाउन yes, yes. तो जो प्रॉपर नाउन्स है वही यूज करना है तो थोड़ा सा जो लेटर्स हैं कई बार होता है ना कि हमारी लेटर्स की बनावट भी इट इज नॉट सो प्रॉपर तो हम जानबूझ के नहीं लिख रहे होते हैं कि दैट इज अ लाइक कैपिटल लेटर बट वो बन जाता है ओके अब देखो ये क्या लिखे हो व्हाट इज दिस लेटर ये वर्ड क्या है ये Hindu unbelievers. Unbelievers.
हिंदू अनबिलीवर्स क्या होता है? इज दिस अ वर्ड इन अनबिलीवर्स? यू कुड हैव लाइक No, sorry, सिंपली यूज्ड अथीस्ट। non-believers, अरे तो you should use atheist. That is a more atheist. proper word, na? Who is Yes, an atheist? Somebody who does not believe in God, right? So rather than using some uncommon word, use a proper theoretical word that is used for this religious or spiritual aspects. समझ रहे हो? yes, sir. तो ये unbelievers, और especially even if you are Hindu believer also, that doesn't mean jihad is for even against Hindu believers also. You don't need to be atheist. समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है आपके लाइन में? जो वर्ड होता है काफिर का, इफ यू आर believer in Hinduism, then also you are considered as a kafir काफी. because you are not Yes, believing in Allah. समझ रहे हो ना? It doesn't matter for a jihadi yes, whether you are believing in Christianity or Hinduism or not. It doesn't matter whether you're a believer. It only matters whether you believe in Allah or not. If you are not believer in Allah, then you are a kafir. Getting what I'm saying? तो ये जो ये लाइन yes. है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है लाइन। दिस लाइन इज नॉट गुड। अच्छा, एक और पॉइंट है जो यू शुड, यू आर राइटिंग वेरी वेरी लेंथी सेंटेंसेस। समझ रहे हो? And ये बहुत प्रॉब्लमेटिक करेगा, क्योंकि जो फोकस होता है ना एग्जामिनर का, वो आपका पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर रहा है, आपने कॉमा लगाते 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 पूरा पैराग्राफ ही एक लाइन में कर दिया है। या पढ़ो, देखो इसमें फुल स्टॉप कहीं दिख रहा है? इंट्रोडक्शन पढ़ो अपना। नो सर, मैं वही पे फुल मैं स्टॉप, लिखने के बाद में. फुल स्टॉप कहाँ पे आ रहा है इसका? टेल तो मी इस वेयर योर ऐसे. फुल स्टॉप है। देखो, आपका फुल स्टॉप फाइनली कहाँ पे आ रहा है? नहीं है. यहाँ पे आ रहा है। व्हेन योर फर्स्ट पैराग्राफ एंड्स देन द फुल स्टॉप कम्स, मतलब आपने एक ऐसी लाइन लिखी है। कितने लाइन है उसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लाइन्स के बाद आपका फुल स्टॉप आ रहा है। अब कोई भी कॉपी अगर आपकी चेक करेगा, वो इतना बड़ा कंसंट्रेशन करेगा? कहाँ कहाँ कॉमा लगाते, कहाँ कहाँ जोड़ते चले जा रहे हो आप? ठीक है, एट मैक्स यू शुड गो 2 to 3 लाइन्स, पहला इससे फुल स्टॉप. ज्यादा। हाँ, Yes. आपका भी कंसंट्रेशन तीसरे नंबर गड़बड़ पे होगा, आना चाहिए कितना था वो कॉमा लगा। बिंदु. हम्म। अब देखो कई जगह, और जो मुझे पता चला है कि आप कई जगह जहाँ फुल स्टॉप लगना चाहिए वहां लगाए भी नहीं हो, एंड लगा के, कॉमा लगा के, या बिना प्रॉपर, वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो फुल स्टॉप और कॉमा होता है, there's a term for that यस. in grammar. कंप्लीट. Punctuation mark. यस. You know this word? Punctuation mark. यस. 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 Full stop, comma, semicolon, all these things. तो इसका अप्रोप्रिएट यूज करो, स्मॉलर सेंटेंसेस को लिखो। इतने बड़े सेंटेंस लिखोगे, नंबर वैसे कट जाएगा। क्योंकि जब भी बड़े सेंटेंस लिखोगे, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे बढ़िया से। तो इस चीज का ध्यान दो। 2 से 3 लाइन से ज्यादा नहीं जाना है, सेंटेंस के बाद कॉमा फुल स्टॉप लगाना है। सॉरी, कॉमा नहीं, फुल स्टॉप। अब देखो यहाँ पे एक चीज और जो गलती कर रहा है, जैसे एयरफोर्स है, ये देख रहे हो, इट शुड बी कैपिटल। जी. जहाँ पे भी एयरफोर्स कैपिटल. है, नेवी है, वो सब कॉमन नाउन है ना, अपने आर्मी का नाम है वो, एयरफोर्स का। दैट हैज टू बी कैपिटल। ये तो बेसिक, अभी मैं जो पॉइंट कर रहा हूँ वो ग्रामर और लैंग्वेज की मिस्टेक से हुए हैं। ओके, इसको भी ध्यान रखो। यहाँ पे ईडी लगना चाहिए, मास्ड, क्योंकि पास्ट टेंस में लिख रहे हो ना ये। यस. जो एनेक्डोट बता रहे हो दैट इज इन पास्ट टेंस। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ लगना चाहिए, मास्ड। ये सब उसको दिखेंगे, जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा ना। जैसे मैंने पहले व्यू में ही ये सब पकड़ लिया था, और जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, ही इज लाइक वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। वो पहले ग्लांस में पकड़ लेगा ये सब गलतियां जो कॉमन कॉमन कर रहे हो आप। अब यहीं पे कहीं पे आप, यहाँ फुल स्टॉप कहीं डालना चाहिए था, बहुत लंबी लाइन लिखे हो। देखो इसमें, देखो प्रॉब्लम है, इसमें फ्लो नहीं है इस लाइन में, कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिए हो। हु लेड नेगोशिएशन ऑफ सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस वाज जीवेस।
यहाँ पे देखो, Yes. यहाँ पे भी ईट लगेगा, कंबाइंड एफर्ट्स होगा, ईट ही लगेगा यहाँ पे, देख रहे हो? अगेन यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है। ये देखो, पाकिस्तान की स्पेलिंग गलत लिख दिया यहाँ पे, कितना बड़ा ब्लंडर किए हो। आगे टी लगा दिया ना, फ्लो फ्लो में, जल्दीबाजी में। यहाँ पे एस नहीं लगेगा। विलेजेस थोड़ी है, एक ही विलेज था ना, तो यू शुड नॉट राइट यस। अब देखो, ये भी पूरा एक ही सेंटेंस है ना ये, दिस होल इज वन सेंटेंस, राइट? गो थ्रू दिस, जो मैंने हाईलाइट किया इसको देखो, दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes. 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 ये भी पूरा No, यहाँ सेंटेंस है like पूरा। contrary to this 25. हाँ तो वो पूरा कवल विलेज के पैराग्राफ। बाद उसको कवल विलेज के बाद स्टॉप फुल स्टॉप लगे इट इज कलेक्टेड टू बिकम वन ऑफ द कॉन्ट्रारी टू दिस सही है, यहाँ पे पहली बात तो कॉमा लगाना चाहिए, कॉन्ट्रारी टू दिस आप स्टॉप होगे, हल्का सा कॉमा पॉज लोगे। द, अब यहाँ पे स्मॉल लेटर है ना, यहाँ पे कैपिटल क्यों लिखे हो? ये यहाँ से सेंटेंस थोड़ी शुरू हो रहा है जो कैपिटल लिखती है वो। ओके। मुजफ्फर राइट्स विच वर इग्निटेड बाय माइनर ईव टीजिंग इंसिडेंट इन कवल विलेज, यहाँ पे कॉमा लगेगा। विलेज। ओके। एस्केलेटेड टू बिकम वन ऑफ द ब्लैक चैप्टर्स इन आवर हिस्ट्री, यहाँ पे कॉमा लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो, इट यहाँ पे सीधे इट लगा के नया सेंटेंस शुरू करो। इट क्वेश्चनड आवर रिलीजियस हार्मनी। क्वेश्चन। छोटे छोटे करने के क्या है, आप कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हो, जोड़ जोड़ के उसको बढ़ाते चले जा रहे हो, उसको ब्रेक कर दो। सिंपली इट लगाओ यहाँ पे और आगे बढ़ जाओ। इट क्वेश्चन आवर रिलीजियस हार्मनी। और यहाँ पे आप थोड़ा सा एकेडमिक कीवर्ड डाल सकते हो। प्रियम्बल में वैल्यू है ना, ये इट इज अ प्रियम्बुलर एथिक्स, वहां पे लिखा हुआ है ना सेकुलरिज्म, राइट? यस। फंडामेंटल राइट्स का मेंशन कर सकते हो, आर्टिकल 25 to 29 मेंशन कर सकते हो इसमें। तो जब ये चीज डालोगे यहाँ पे, आप कह दो कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस है या प्रियम्बुलर वैल्यूज है प्रियम्बल में, दैट बिकेम, दैट वर सबसाइडेड और वीकेंड, और, समझ रहे हो? जब वो वर्ड्स यूज करोगे तो एक बढ़िया इंप्रेशन जाता है टीचर के ऊपर, जो भी चेक कर रहा है कॉपी। अब ये देखो ये इसमें जो जो ये जो मैंने सर्व संभाव लिखा है नहीं, दैट इज फाइन, वो ये भी अच्छा है, यू कैन कोड दिस। लेकिन इसका कोई बेसिस नहीं ना, आप कुछ जैसे अभी ये जैसे प्रियम्बल आपने कॉन्स्टिट्यूशन कोड कर दिया, आप एक सोर्स बता रहे हो हमारे जो वैल्यूज हैं, जो क्वेश्चन है। अब इसमें भी कह सकते हो, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये लिख दो कि हमारी जो कल्चरल इथोस हैं, हमारी जो कल्चरल वैल्यूज हैं, जो हम इम्बाइब करते हैं अपने अंदर में, दैट बिकम कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके। बस वहां पे एक एकेडमिक कीवर्ड डाल देना हमको। अब देखो, यहाँ पे देखो, अगला पैरा देखो, above टू केसेस गिव्स अस स्केप, ये क्या है? स्केप लिखे हो, स्कोप लिखे हो? स्कोप। स्कोप। व्हाट इज इट? स्कोप अब देखो यहाँ स्कोप पे देखो, ये इज दिस स्पेलिंग करेक्ट? आर। हम्म। नो स्पीकर प्लूरल होता है ना, इट इज प्लूरल, राइट? प्लूरल द करेक्ट आर। वर्ड इज प्लूरल, फिर इसके आगे स्टिक लगेगा, तब बनेगा प्लूरिस्टिक ना। ये तीन चार जगह यू हैव यूज्ड इट इन द होल इसे, एंड हर जगह स्पेलिंग ये वाली गलत है। अब अगर वो आपका हर एक स्पेलिंग एरर पे हाफ नंबर काटेगा, और आपने 10 से 12 मिस्टेक कर दी, तो अब देखो, यू आर फाइटिंग अराउंड 1200 वर्ड, राइट? 1200 से 1500 वर्ड यस। लिखोगे, अगर हर पन्ने पे एक भी स्पेलिंग पकड़ पा गया वो। हम देखो यहाँ पे द है, एक्चुअली ये ही लग रहा है। ये भी देखो यहाँ पे, यार होप नहीं होना चाहिए यहाँ पे, शुड बी आस्क आवरसेल्फ व्हाट वी होप वी इंडिया शुड टू बिकम। क्या होना चाहिए देखो, होप व्हाट कर वी रहे हो आप। होप इंडिया टू। नो सर होप। नहीं नहीं नहीं, फिर से पढ़ो एक बार, रिपीट इट। व्हाट व्हाट
हम चाह रहे हैं कि आशा कर रहे हैं? तो डू वी होप और डू वी विश फॉर, डिजायर? वी डिजायर्स। अप्रोप्रिएट वर्ड अगर हाँ सर। डिजायर है ना, हमारा, हमारी ये जरूरत है। दैट इज द नीड ऑफ द कंट्री, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी हाई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लगा ले, हॉट लिख रहे हो ना, देखो ये भी है, इंट्रोगेशन मार्क लगना चाहिए। शुड आस्क आवरसेल्फ व्हाट वी होप इंडिया टू बिकम, क्वेश्चन मार्क लगाओ, उसके बाद यहाँ पे आगे आंसर करो। यहाँ पे लिखो कैपिटल में, द आंसर शुड बी, तो द आंसर इज सिंपली द फॉर्मर वन। अब यहाँ पे आपने व्हाट लिख लिया, तो यहाँ पे इंटरोगेशन मार्क लगना चाहिए सेंटेंस खत्म होने पे ना। ये तो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, यू नीड टू वर्क ऑन इट। समझ रहे हो ना? तो पहली चीज तो ग्रामर पे काम करो, फिर स्मॉलर सेंटेंसेस लिखो। ओके, स्पेलिंग पे ध्यान दो। ये सब चीजें जो हैं, यू हैव टू वर्क इट आउट, ये बेसिक लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। और एकेडमिक कीवर्ड्स का यूज करो। एकेडमिक कीवर्ड जैसे यू आर राइटिंग हियर अ टॉपिक विच इज रिलेटेड टू इट कॉन्स्टिट्यूशनल इथॉस, सेकुलरिज्म की लगभग लगभग ये क्या है, जो टॉपिक हमारा यू हैव पिक्ड इट, उसका डीलिंग क्या है? दिस इज डीलिंग विद सेकुलरिज्म, राइट? समझ रहे हो? तो इसको आप लिंक कहाँ से करोगे? जो सेकुलरिस्टिक सेकुलरिज्म वाली वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे लिंक करोगे, अपने कल्चर से लिंक करोगे। और इसका ब्रेन स्टॉर्मिंग किए हो कहीं पे, किसी पन्ने पे आंसर लिखने के पहले ऐसे यू वुड हैव डन ब्रेन हाँ ब्रेन हाँ। स्टॉर्मिंग, राइट? यस। वो यस। पन्ना कहाँ पे है? वो दूसरे पेज में लैब में? है इधर, मतलब हाँ। अच्छा, मैंने वो मुझे सेंड सेंटेंस ही। करना। ओके। हाँ, उसको सेंड करना मुझे, क्योंकि मुझे देखना है एक्चुअली। इसमें मैंने पढ़ा, व्हाट इज मिसिंग इज, इसमें लॉजिकल फ्लो नहीं है, आपके जो पैसेजेस लिखे हो ना, देयर इज नो लॉजिकल फ्लो इन इट। पैराग्राफ ऐसे हैफजर्डली आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है। ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। समझ रहे हो? आगे देखो, इसमें देखो, कहीं पे मैंने जो है, हाँ देखो, ये कौन सा आर्गुमेंट चल रहा था? ये क्या वर्ड लिखे हुए वैसे, ये भी नहीं समझ पाया था मैं, व्हाट इज दिस? मार्बल्स मार्बल्स मार्बल्स, VALS में। अच्छा, द वर्ल्ड मार्वल्स मार्बल, एट अस, इसका क्या मीनिंग हुआ? वंडर्स, मतलब उससे इजी तो वंडर, मतलब इस हिंदी सेंस में में क्या आई बोलते हैव नेवर लाइक सीन यूसेज ऑफ इट। प्रॉपर वर्ड ही लिख लो ना, वंडर ही लिखो, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। अगर आपको पता है तो वैसे वर्ड यूज करो जिसका कंफ्यूजिंग मीनिंग ना निकले। क्या लिखे हुए, हाउ वेल इंडिया 5000 ओल्ड ईयर सिविलाइजेशन ऑल्दो डाइवर्स इन एवरी एस्पेक्ट एबल टू होल्ड टुगेदर। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगना चाहिए ना, अगला सेंटेंस शुरू कर दिया यहाँ से, दिस कैन बी अंडरस्टूड। देख रहे हो गलती अपनी? हैं। यस। यहाँ पे आपका सेंटेंस पूरा हो गया है। यहाँ पे कैपिटल टी आना चाहिए, क्योंकि देखो पढ़ने से ही लग रहा है कि आपका अगला सेंटेंस शुरू हो गया है, बट यू हैवंट डन इट। देखो चीज चार लाइन है, इसको दो लाइन में बोल सकते थे, पूरी फीलिंग। डिस्पाइट बीइंग 5000 years old civilization, the world wonders how we have remained intact or united। वेरी सिंपल में आ जाता ना, एक डिस्पाइट लगाते, ऑल्दो लगाते, और पूरे सेंटेंस को कंप्रेस कर देते दो लाइन में, जो चार लाइन का सेंटेंस है। ये आर्ट भी सीखो, हाउ टू स्पीक लार्ज मीनिंगफुल थॉट्स इन वेरी फ्यू वर्ड्स। यहाँ पे एसिमिलेशन स्मॉल में होगा। अब देखो एक चीज जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो एग्जांपल्स नहीं दिए हो। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान दो, जैसे सब्सटेंशिएट करते हैं ना, समझ रहे हो?
अगर आपने कोई भी आर्गुमेंट दिया किसी भी पैसेज में, तो उसके आगे एक एग्जाम्पल आना है, ये मस्ट है। समझ रहे हो? तो देखो प्रवीण, अगर जब भी कभी ऐसे लिखो, आर यू हियर विद मी? यस यस। तो देखो जैसे इसमें अब आपने ये जो फीलिंग है ना, ये जो टर्म है प्लूरलिज्म, इसके इसको कहीं पे एक्सपेंड किया है मीनिंग को? नो, पहले ही फिल्म में तो मैंने दिखाया, बस दिखाने की कोशिश की हिस्ट्री पे, पहला एनेक्डोट सेंटेंस। दिया, एनेक्डोट इज फाइन, एनेक्डोट जो है फाइन है। पर जैसे जब आप एनेक्डोट दिए, उसके बाद एक कनेक्टिंग पैराग्राफ लिखोगे, जो आपने लिखा हुआ है, इसमें वो चीज ओके है, जैसे ये वाली जो लाइन लिखे हो यहाँ पे, ये लाइन ये कनेक्टिंग है। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ आना चाहिए, वहां पे क्या बताना चाहिए हमें कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लूरलिज्म की बात कर रहे हैं ना। तो जो की वर्ड है अपने ऐसे में, सबसे पहले तो उसको पकड़ो और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लूरलिज्म। वो मैंने ये चीज थर्ड पेज में जो बताओगे ना भाई? पहला सेंटेंस बनाया था सर, किस वो डिफाइन किया था प्लुरलिज्म में? रिलीजन, लैंग्वेज, रेशियल ग्रुप, माइनॉरिटी राइट्स, इसके बाद वाले हाँ ये पेज में। वाला। हाँ हाँ जी। हाँ, जो ये वाला ना, दिस वन ना, इसके बारे में बोल रहे हो ना? इसके बाद हाँ हाँ जी, छोटा। यही ना? यस। ये तो एक्सपैंड होगा इसको, एक्चुअली ये आगे चल के एक्सपैंड होगा, इसमें एक एक डायमेंशन पे एक एक पैराग्राफ लिखना है, यू हैव टू राइट। जब हम प्लूरलिज्म को पहले एक में डिफाइन करेंगे, उसके बाद ये जैसे रिलीजन है, इस पे एक पैराग्राफ बनाओ, फिर आगे लैंग्वेज है, उस पे एक पैराग्राफ बनाओ। समझ रहे हो? तो उससे फिर आप एक पन्ना, लगभग लगभग अगर 4 से 5 लाइन का एक पैराग्राफ बनाओगे, तो जो प्लूरलिज्म को पूरे डिफाइन करोगे कि हमारे में प्लूरलिज्म कैसे है इंडिया में। उसके बाद फिर अगला टॉपिक क्या हो सकता है, इंडिया प्लूरल है कि नहीं है, आप यू कैन लाइक इंटरोगेट योरसेल्फ। अब जो आपने पूरा बताया है इसमें, लगभग वो चीज, अब मैं लास्ट के 2 पन्ने नहीं पढ़ा हूँ, बदन वेदर यू हैव लास्ट के 2 पन्ने में तो इनकॉर्पोरेटेड द, प्रॉब्लम्स, हाँ, निगेटिव प्रॉब्लम्स डायमेंशंस ऑफ किया है कि खतरे क्या है। यस यस यस। हम्म। और कुछ की वर्ड्स इसमें आते हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू प्लूरलिज्म का, वो सब वर्ड्स को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। और कुछ स्कॉलर्स जो हैं, इनका नाम, जैसे इसमें कहीं भी किसी भी बढ़िया स्कॉलर का नाम नहीं डाले आपने। और एक आर्गुमेंट है जैसे आइडिया ऑफ इंडिया वर्सेस आइडिया ऑफ पाकिस्तान, सुना है कॉन्सेप्ट? हम्म। आइडिया ऑफ इंडिया वर्सेस आइडिया ऑफ पाकिस्तान, एक सुनील खिलनानी करके ऑथर है हाँ जी। ना, उसकी बुक है द आइडिया ऑफ इंडिया। तो आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, इट इज सेकुलर इंडिया। एंड आइडिया ऑफ पाकिस्तान क्या है, थियोक्रेटिक स्टेट। प्योर प्योर। ठीक है, रिलीजियस स्टेट। तो इंट्रोडक्शन जो आप एक्सप्लेन करोगे वे प्लूरलिज्म का, वहां से स्टार्ट कर सकते हो कि जो इंडिया का जो स्टेटहुड है, जो नेचर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो नेचर ऑफ पॉलिटिकल स्टेट है, वो किस तरह का है। इट इज सेकुलर स्टेट, जहाँ पे प्लूरलिज्म इज इनकॉर्पोरेटेड नॉट ओनली विद इन द फंडामेंटल राइट्स बट इवन अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स बताने पड़ेंगे, प्रियम्बल में जो है, कहीं पे अमेंडमेंट्स हुए हैं वो हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जैसे इसमें मिसिंग है, देर आर जजमेंट्स ना अबाउट सेकुलरिज्म, यस। वो भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ ब्रीफ में, उसको समझना। पेपर को जैसे लॉजिकली कैसे लिखेंगे एसे को,
देखो जैसे अपना ये पूरा पन्ना है आपका ऐसे का, सिर्फ मैं ये आउटलाइन बता रहा हूँ इसको कैसे करना है। तो सपोज करो कोई भी ऐसे है अपने पास, और उसकी कोई हेडिंग है, फॉर एग्जाम्पल दिस हेडिंग ओनली, कि यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया, अगर वो प्लूरल नहीं है तो इंडिया ही नहीं है। सिंपली यही है ना। दिस सेंटेंस मीन्स कि इफ इंडिया इज नॉट प्लूरल, तो उसका जो बेसिक नेचर है इंडिया का, वो खुद ही खत्म हो जाएगा, तो वो पाकिस्तान जैसा बन जाएगा या नॉर्थ कोरिया जैसा बन जाएगा, वो इंडिया नहीं रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी आप एग्जांपल दे सकते हो कि आइडिया ऑफ इंडिया से वर्सेस। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, हमको मान लो कि हमारे पास इस टॉपिक से आप जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, तो क्या करोगे, एक 5 कोर थीम्स निकालोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पहली कोर थीम हमारे कि व्हाट इज प्लूरलिज्म। चलो पहला को हम मान लेते हैं इंट्रोडक्शन है ये। जो आपने पहला पन्ना लिखा वो क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। दूसरे पन्ने में क्या बोलोगे, व्हाट इज प्लूरलिज्म। आप ये समझाओगे प्लूरलिज्म होता क्या है। जो उसमें यू हैव रिटन ना, सैलेड बॉल मॉडल एंड ऑल दैट थिंग, एसिमिलेशन का यस कॉन्सेप्ट, सर। यूएस का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया का कॉन्सेप्ट है, हाउ इट इज डिफरेंट। तो यहाँ पे आप बता दोगे कि हाँ प्लूरलिज्म क्या है, ये पूरा नेक्स्ट पन्ना हो जाएगा। मान लो पहला पन्ना जो है इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा पन्ना प्लूरलिज्म, और इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना कि प्लूरलिज्म होता क्या है। फिर आओगे इस अगले थीम में कि क्या इंडिया प्लूरल है, इज इंडिया प्लूरल। अब ये तो ब्रॉड थीम है, समझ रहे हो ना, इज इंडिया प्लूरल। अब इसके अंडर में इसको एक्सपैंड करो, इसको मान लो हम मानते हैं मैक्रो डायमेंशन। क्या बोलेंगे इसको हम, मैक्रो मीन्स बड़ा, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इन सिमिलर वे इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो डायमेंशन। फिर जैसे ये मान लो एक हमारा ये डायमेंशन हुआ मैक्रो, एक ये हुआ, और ये 3 हुआ। अब चौथा इसी के सामने और बनाओ, इज इंडिया प्लूरल। और क्या बना सकते हो, ऐसे क्रिएट करो प्लूरलिज्म के बारे में। अच्छा हाँ, उसमें यू हैव इसमें इसी क्रिएटेड में जो दो है, यस। इसमें यू हैव क्रिएटेड, लेकिन एक बार आपने ये बताया है, उसके बता दो है कि किस रीजन से इंडिया प्लूरल है। यू हैव एडेड यस दिस ना, कि इंडिया जो है किस रीजन से प्लूरल है, और उसको लगभग काफी ज्यादा स्ट्रेच कर दिया है। उसका बहुत ज्यादा पैकेज किया जरूरत उसमें नहीं है। मैंने हाँ ये किया है मेरे कि ख्याल से। हाँ मतलब इंडिया वही है, मैं अल्टीमेटली मैंने उसी को एक्सप्लेन किया कि हाँ इंडिया इज प्लूरल प्लूरल, नेचर इसी में किस बेसिस हिस्टोरिकल पे। देखो, हमें करना क्या है ना, इसी में हिस्टोरिकल एंगल दे देना हमको। तो जैसे इज इंडिया प्लूरल, तो आप हिस्टोरिकल एग्जाम्पल के अंदर डाल दो सब चीज, अशोक का ले लो, अकबर का ले लो। ओके, फिर उसके अंदर तो इसी मैंने में डाला है सोसाइटल। पीछे। हाँ हाँ डाले हो, मैं नहीं करूँगा तो डाले नहीं हो। पर उसको आपने दो में स्प्लिट कर दिया है। एक बार पहले बताए हो, फिर नहीं। आगे प्रूव किए हो कि किस रीजन से, हाँ। जैसे ज्योग्राफिकल एग्जांपल डाले हो, आगे जियोग्राफी वाले डाले हो ना। तो जियोग्राफी एक्चुअली हाँ। इम्पैक्ट करता है प्लूरलिटी में, डायरेक्ट रोल नहीं होता ज्योग्राफी का ना। वेदर अलग होगा, सॉइल अलग होगा, टोपोग्राफी होगी, तो उसकी वजह से हमारी फूड हैबिट्स, क्लोथिंग, ये सब बदल जाएंगी। राइट, तो उस तरह से इम्पैक्ट करेगा ज्योग्राफी। तो इसको हमको क्या करना है, ऐसे एक्सपैंड कर देना है। अब ये इंडिया इज प्लूरल, इसी के साथ अगला जो है डायमेंशन नेगेटिव वाला ले लो, काउंटर नैरेटिव ले लो, कि क्या रियली हम्म, इंडिया प्लूरल है। अब यहाँ पे चैलेंजेस भी देना है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी देने हैं आपको, और जो काउंटर नैरेटिव्स हैं, स्यूडो सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके, वो सब भी बताना पड़ेगा। यशवंत सिन्हा की एक बुक है स्यूडो सेकुलरिज्म पे, वो लिख सकते हो, उसमें कोट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पूछना, उसके बाद जो है क्या कर सकते हो, एक समेशन आर्गुमेंट दे सकते हो। अब ये चीज आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, इस पे थोड़ा मेहनत करो कि इसको एक्सपैंड कैसे करें। जैसे काउंटर नैरेटिव हमें बिल्ड करना है ये वाला, कि वेदर इंडिया इज रियली सेकुलर और नॉट। तो इसके डायमेंशन जो है ना, एक सेट ऑफ पैटर्न आइडेंटिफाई कर लो, उसी तरीके से बढ़ते चले जाओ। जैसे एक पेस्टल अप्रोच होती है, पता है ये चीज, जी जी। पढ़ाया होगा अगर क्लास किया था। हाँ हाँ। तो जैसे पेस्टल अप्रोच होता है, तो उस एंगल से भी लेके चल सकते हो, कि पहले पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो कर लो, कि भाई पॉलिटिक्स में क्या सेकुलरिज्म चल रहा है। जैसे बीजेपी है मान लो, तो बीजेपी जो है किसी भी मुस्लिम को सीट नहीं देती है, क्योंकि उसको पता है कि बिना दिए भी जीत जाएंगे। पर एक्चुअली क्या वो सेकुलर प्रैक्टिस है, क्या प्लुरलिज्म फॉलो हो रहा है इन स्पिरिट, नहीं फॉलो हो रहा है। तो यू कैन गिव एन एग्जांपल हियर। उसी तरह से फिर जुडिशियम चले जाओ, जुडिशरी में क्या एक्चुअल में प्लुरलिज्म है। और सिर्फ रिलीजियस नहीं, कास्ट के टर्म्स में देख लो, कितना रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे, डेटा डालो।
ओके, यू नीड टू पुट डेटा यहाँ पे, माइनॉरिटी पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में कितना है, और जुडिशरी में कितना है, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में कितना है। ये जब आपके पास डेटा रहेगा तब यहाँ पे सब्सटेंशिएट होगा, तभी नंबर मिलेगा बढ़िया से। हवा हवाई बात करते चलोगे तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। तो जुडिशियल एंगल उठा लो, फिर क्रिमिनल जो जस्टिस वाला होता है ना, कि जैसे जेल में कौन लोग, कितने लोग बंद हैं, किस जात के लोग ज्यादा बंद हैं, किस धर्म के लोग ज्यादा बंद हैं जेल में, और फर्जी केसेस किसके होता है, जो बेल पेंडिंग्स हैं, तो वो किसकी कितनी पेंडिंग है। ये सभी डायमेंशन है ना जहाँ पे आपकी सेकुलरिज्म और प्लुरलिज्म खत्म हो जाती है जाके। और फिर अभी जैसे यूपी में कुछ ऐसे ऑर्डर्स आए थे जहाँ पे ठेलों पे अपने नाम लिखने थे लोगों के, राइट, पीपल वर टू पुट देयर नेम्स ऑन देयर शॉप्स, किस रिलीजन के हैं, किस कम्युनिटी के हैं। ओके, तो ऐसे ऐसे करके इसको बढ़ाते चले जाओ। सोशल एंगल ले लो, उसमें कम्युनलिज्म वाले एंगल डाल सकते हो सोशल में, कि कैसे जो है दंगे बढ़ रहे हैं समाज में। ओके, टेक्नोलॉजिकल का बहुत ज्यादा डायमेंशन तो आएगा ना इसमें। लीगल में ये सभी एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा अप्रोच क्या होता है, जैसे डायमेंशन, इस डायमेंशन को ओपन करने के लिए हम लोग पेस्टल का अप्रोच करेंगे। एक चीज ये याद रखना, जब भी कभी जो थीम्स आइडेंटिफाई करोगे ना, जो मैं बोल रहा हूँ माइक्रो डायमेंशन, उसमें पेस्टल अप्रोच मत लगा देना कभी गलती से भी। समझ रहे हो? हम्म, मतलब ये मैक्रो में नहीं, माइक्रो में पेस्टल लगाना है, ताकि वो जो थीम है हाँ, उसके अंदर कैसे माइक्रो में उसको लगाना एक्सपेंड करना है जिससे उसमें। उसको डायमेंशन को खोल दो उस थीम के। मैक्रो में कभी मत लगाओ, मैक्रो में सिर्फ थीम देखो, वो जो ऐसे का टॉपिक है उसको सोचो कि उसके सात आठ, मतलब छह सात अलग अलग क्या ब्रॉड थीम्स हो सकती हैं। कोई कोट दिया है तो उसका मीनिंग क्या है, क्या उसका मीनिंग सही है कि यही एक मीनिंग है, इसके अलावा अलग मीनिंग नहीं हो सकता। जैसे अभी 2025 में क्वेश्चन आया था ना वाला, कि ट्रूथ हैज नो कलर। उसको अटेम्प्ट किया क्वेश्चन को, ट्रूथ हैज नो कलर। दोनों। मैं तो अभी उसको स्टार्ट, अटेम्प्ट लिखना करो। स्टार्ट किया 24 में, मैंने अब 24 वाला दिया था, 25 वाला अच्छा अच्छा, नहीं अटेम्प्ट नहीं, अटेम्प्ट तो करो, उसको अटेम्प्ट करो। जैसे होता है ना फिलोसफिकल एंगल है वो, थॉट प्रोवोकिंग एक ऐसे है उसका टाइप। अब जैसे आप ये मान सकते हो, हाँ, ट्रूथ हैज नो कलर, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव होता है, ट्रूथ यूनिवर्सल होता है। ओके, उसमें आप साइड कर सकते हो, लेकिन क्या एक्चुअल में सही है? आज आज के टाइम पे कंटेम्परेरी में क्या ट्रूथ का कोई कलर नहीं है? कहा जाता है ना, किसी झूठ को 100 बार बोलो तो भी सच जैसा हो जाता है। और आज के टाइम पे ये कितना प्रोपेगेंडा चल रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन चल रही है, मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन्स चल रही हैं। वी आर लिविंग इन अ ऑब्जेक्टिव पोस्ट वर्सेस ट्रूथ वर्ल्ड। सब्जेक्टिव रियलिटी। यस। हाँ बिल्कुल। और हर एक ट्रुथ जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स होते हैं इसमें, जैसे आप पढ़े होगे एथिक्स में तो फेमस एग्जांपल। आप, हाँ, इमैनुअल कांट का पढ़ोगे। व्हाट इज योर बैकग्राउंड ऑफ ऑप्शनल, ज्योग्राफी होगा ना? मेरा ज्योग्राफी। हाँ, ज्योग्राफी होगा। तो उसमें से भी अगर कोई वो जो ज्योग्राफिकल थॉट में होते हैं टॉपिक्स, अगर उसमें कुछ इस तरह से मैचिंग मिले तो यू कैन कोट देम आल्सो इन दैट से, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, जैसे पॉलिटिकल थॉट में आता है एक लियोटार्ड करके है, उसमें बोलता है मेटा नैरेटिव क्या होता है। एक नैरेटिव होता है ना जिसमें कि एक चीज को एक्सपैंड करते हैं लोग, कि लोग हमारी बात को ही माने। ओके, तो कोई भी जैसे रिलीजन में ट्रूथ होता है, जैसे इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, तो वो कहेगा कि भगवान ऐसे ही है, बट उसके काउंटर नैरेटिव्स भी हो सकते हैं। जैनिज्म में जैसे लिखा था इस पे, यू हैव मेंशन अनेकांतवाद, उसी तरह शून्यवाद का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो हर एक आर्गुमेंट के काउंटर आर्गुमेंट देना है और वो थीम से निकालना है। तो वो एक एक उसको एक थीम बोलना है, बना लेना है, उसके बाद उसको एक्सपेंड करना है पेस्टल लगा के। और फिर बाकी दूसरा जो अप्रोच है एक्सपेंड करने का, जो सिलेबस वाला अप्रोच होता है अपना, GS1, GS1 ले लो, GS2 ले लो, उसके हिसाब से सेक्टोरल सब्जेक्ट वाइज अप्रोच है। बढ़ते चले जाओ। हाँ, सोसाइटी ले लो, फिर ज्योग्राफी ले लो, फिर उसके बाद हिस्ट्री ले लो, IR ले लो। तो जहां से भी बन सके पॉइंट उसको एक्सपेंड करते चले जाओ। और हर एक पॉइंट को जो है ना, एक पैराग्राफ लिखो, 4 से 5 लाइन, इससे ज्यादा मत जाओ। तो 2 लाइन में अपने आर्गुमेंट दे दो, 3 लाइन में, उसके बाद उसमें एक एग्जाम्पल डाल के उसको जस्टिफाई कर दो कि मेरा आर्गुमेंट इस तरह से है। मतलब उसी एक ही पैराग्राफ में, मतलब कि अगर एक पेज में दो पैराग्राफ लिखे तो पहले स्टार्टिंग में पीसीस एक लिखे। पेज में दो नहीं, कम से कम 4 पैराग्राफ लिखो एक पेज में, लंबे पैराग्राफ नहीं चार। लिखने होते। ठीक है, जैसे आप ट्रांजिशन कर रहे हो, आपने एक थीम लिखा इस वाले ऐसे में, जैसे यू रोट कि पहले हाँ कि प्लूरलिज्म होता क्या है, उसके बाद आपको ट्रांजिशन करना है कि इंडिया में प्लूरलिज्म है कि नहीं है। तो आप एक एक पैराग्राफ छोटा सा, 1 लाइन लिखोगे पहले,
कि नाउ हैविंग अंडरस्टूड व्हाट प्लूरलिज्म इज, लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर इज इंडिया रियली अ प्लूरिस्टिक कंट्री और नॉट। ये होगी ट्रांजिशन की लाइन। जब एग्जामिनर ये पढ़ेगा तो समझ जाएगा, हाँ अब आप नए पैराग्राफ पे या नई थीम पे शिफ्ट हो रहे हो। समझ रहे हो? और ये जरूरी है, जब भी आप एक थीम लिखे और आप नई थीम पे जाना चाह रहे हो, तो क्या लिखोगे, एक ट्रांजिशन की लाइन लिखोगे वहां पे। तो वो मैं बता दूंगा, आई हैव लाइक प्रिपेयर्ड, वो सब है, मटेरियल्स है, आई विल गिव यू किस तरह का ट्रांजिशन लाइन आप यूज कर सकते हो। ओके। लेकिन इसको जो है ना, इस एस्से को, या इसको चलो एक बार लिख लिया, कोई इस तरह 2025 वाले जो एस्सेज हैं उनको ट्राई करो आप। जो जो फीडबैक दे रहे हैं उसको रखो, ध्यान रखो उसको। ये क्या नोटिफिकेशन आ रहा है स्क्रीन पे? डेटा भी याद करो। समझ रहे हो? यस सर, भी ये तो एग्जाम ये के जो, टाइम में याद रहता है अभी। हाँ, GS3 के डेटा अभी भी जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेटा लिखो, क्योंकि अभी वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो चीज डेटा हमेशा याद रखनी, क्योंकि जब भी प्रैक्टिस में अगर उसको यूज नहीं करोगे ऐसे लिखते समय, तो लास्ट पॉइंट पे वो प्रैक्टिस में आएगा नहीं, आदत नहीं बनती ना कि हमें डेटा डालना, एग्जाम्पल डालना, जस्टिफाई करना है। तो डेटा कोशिश करो याद रखो अभी से ही। 10 पन्ने का, 15 पन्ने का अलग से एक फैक्ट शीट बना लो अपने टेबलर फॉर्म में, जिसमें डेटा रखो हर चीज का टॉपिक वाइज। जुडिशरी का डेटा, क्रिमिनल जस्टिस का डेटा, इस सब का डेटा आपको तैयार होना चाहिए हमेशा। वुमेन पार्टिसिपेशन का डेटा कितना है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन कितना है, ट्राइबल्स के अगेंस्ट कितना क्राइम चल रहा है, वो सब हर एक डेटा होना चाहिए। इकोनॉमिक अगर आ रहा है तो उसमें जो है, और इंटरनल सिक्योरिटी का डेटा है कि कितने दंगे हुए हैं, कितने माओइस्ट अटैक हुए हैं कितनी जगह, और वो डिक्लाइन कैसे हो रहा है, या डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट